Good morning, students. Today I am going to discuss about the solubility product and the numerical problems related to solubility product. In the ninth class, we studied about what is solubility. The amount of solute present in 100 gram of a solvent so as to get saturated solution at definite temperature is called solubility. But here is solubility product. सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट हम किसका निकालेंगे? जो स्प्रिंगली सोलबल साल्ट्स हो. स्प्रिंगली सोलबल साल्ट मीन्स विच आर वेरी वेरी लेस सोलबल इन वाटर. अभी तक आप उनको इनसोलबल मान के चलते थे, लेकिन उनकी सोलबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए हम उनको इनसोलबल करें. एक बकेट के अंदर 1 स्पून भी डाल देंगे वो साल्ट, फिर भी थोड़ा सा बच जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुका. तो हम सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इसीलिए स्प्रिंगली सोलबल साल्ट का निकालते हैं, इसकी चिंता नहीं है कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बना. तो सॉल्बिलिटी के लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन होना जरूरी है. लाइक सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड क्रोमेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या दांतों पे एनामल है या बोन्स है, these are स्प्रिंगली सोलबल्स. उनका होगा. When we put water, part of it goes to solution and that solution ionizes in this manner. And by law of chemical equilibrium, product of concentrated product to the product of concentration of atoms. At equilibrium, the concentration of this is stationary. The constant into constant comes out to the constant. इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ions. A y positive px negative raised to power respective coefficient in a pair distribution. जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में जाएगा. लाइक सिल्वर क्लोराइड, Ag positive Cl negative gives Ag positive Cl. Barium, and they have 1:1 stoichiometry, so there is no power. Now coefficient negative, but in this case we have the coefficient and that goes to power. Similarly कैल्शियम क्लोराइड में भी आपको कोफिशिएंट मिल रहा है और उस केस में भी आपको पावर बनाना पड़ेगा. बॉन्ड्स में कोफिशिएंट 3 आता है, कोफिशिएंट 2, but in this case no coefficient. Silver chromate, coefficient is there. तो जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन डेफिनेट टेम्परेचर बना लेंगे, जो भी आयंस हैं उनका प्रोडक्ट करके जो भी कोफिशिएंट आयनाइजेशन बनते हैं वो उनकी पावर हो जाएगी. तो कुछ इसके बीच तो इसके न्यूमेरिकल वही कर पाएगा जिनको आयनाइजेशन पता है, फॉर्मूला पता है, वही कर पाएगा. दूसरा न्यूमेरिकल नहीं इसके कर. लाइक कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट. And solubility product is given. Solubility, you have to find out solubility product is given to you. And we will assume that X is the solubility. And we know the silver chromate ionizes in this manner. If X is the solubility, how many moles of silver ions are formed? 2 moles. How many chromate ions are formed? X. Then KSP is equal to, the formula वही लिख दिया. Concentration Ag positive is 2x. 2x whole square into x, that is 4x. Means Ksp is equal to 4x2, then x is equal to Ksp upon 4 power 1/3. Complicated calculation है, log table use किया, then log of x is equal to log of 1.1 into 10 minus 12. ये क्या है? Ksp by 4 power 1/3. Then this is equal to x power by क्या होता है? y log x 1/3 log of 1.1. 10 पर minus 12 का log क्या होगा? -12.0 minus log 4.
Further simplified, log of x is equal to 1 by 3. Before decimal is only one digit, characteristic is 0. क्या देखेंगे लॉग टेबल में 11 को 0 पे कॉलम 0 4 1 4 और ये 4 है, characteristic is 0, one digit है decimal से पहले, 40 को 0 कीजिए. On rearrangement, on solving this one, we get this value. लेकिन मुझे तो x चाहिए, x के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा. एंटी लॉग कभी नेगेटिव डिजिट का नहीं देखते, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट हायर डिजिट एड एज सब्ट्रैक्ट, और दिस वन, दिस बिकम्स 5 बार, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू पॉजिटिव. अब 5 बार मीन्स 10⁻⁵. एंटीलॉग में क्या देखेंगे 0.8143 के कॉलम 1 डिफरेंस टेबल वाला ऐड करते हैं, एंड दिस वैल्यू बिकम्स 6.6502. पहले बताया जा चुका है, एक डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो क्या बनेगा 6.50 + -5. दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस. Now, in this case, solubility is given and solubility product has to be determined. उल्टा होगा, पर solubility तो स्ट्रेंथ के फॉर्म में दे रखी है. मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मोलैरिटी के फॉर्म में चाहिए. जैसे मैंने मोलैरिटी, we know the strength is equal to molarity into molecular mass. Molecular of iodide is, अगर हम इसको करेंगे आयोडीन का एटॉमिक मास 127, 2 into 147 into 200. This comes up to 461. So molarity is equal to strength upon molecular mass, and strength is given 0.60. 0.60 means 63 into 10⁻², 0.460. Now if x is the solubility, this becomes x and this becomes 2x. Then Ksp is equal to concentration left into I negative is power 2. This is x and this is 2x, 4x cube, and x is nothing but this one. फिर complicated equation हुआ, log लिया, log of Ksp is equal to log of 4 plus x per y is 3, log of 63 minus 2 minus log of 461. कितना आ गया, 40 को 0 पे कॉलम में, 63 को 0 पे कॉलम में, 46 को 1 पे कॉलम में देखेंगे तो आप 10⁻² is -2.02. And on solving we get this one value. Again this value is negative, एंटीलॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं देखते हैं. नेक्स्ट हायर डिजिट ऐड एज सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसमें भी यही किया, और इसको क्या लिख दिया 8 बार, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू. देन एंटीलॉग में 8 बार में 10⁻8, एंड इसको क्या देखेंगे एंटीलॉग में 0 0 को 8 के कॉलम में 9 डिफरेंस टेबल वाला ऐड कर देंगे, हमें मिलेगी वैल्यू 1.02 और 10⁻8. तो the opposite numerical is solubility product, is solubility, solubility is soluble product. अब दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, क्या प्रेसिडेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कोई सॉल्व सॉल्व बनेगा कि बनेगा वो देखें. तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है आपको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड कॉपर कॉम्बिनेट हैविंग सेम कंसंट्रेशन, कितनी, if this ones are mixed with the present form. सोडियम आयोडाइड कॉपर क्रोमेट डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड में होगा, तो क्या बनेगा कॉपर आयोडाइड एंड सोडियम क्रोमेट. तो क्या कॉपर आयोडाइड के प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं बनेंगे वो बताना है. वॉल्यूम्स आर सेम, कंसंट्रेशन सेम, लेकिन जब एक कंटेनर में एक सोल्यूशन लिया फिर दूसरा सोल्यूशन तो वॉल्यूम डबल हो गया. इनिशियल कंसंट्रेशन 0.02 और वॉल्यूम इज V1. अब मिक्स करने पे VV कितना होगा 2V, तो वॉल्यूम बिकम्स 2V. तो ऑन डिवाइडिंग वी गेट 0.001.
On mixing, the concentration of sodium iodide in a mixture is 0.001, not 0.002, and copper chromate is also not 0.0. So sodium iodide में concentration ion inactive is, and one copper chromate also contains one chromate. The concentrations are same, that is 0.001. Then ionic product of copper iodide, copper concentration iodide to power 2. Copper concentration is 0.001, iodide का 0.001 power 2, 10 minus 9. This 10 minus 9 is less than 10 minus 8. So no prestige will form, because if ionic product is less than or equal to solubility product, then no prestige will form. अगर यदि वैल्यू 10 minus 6 आ जाता तो हम कहते हैं on mixing we will get the prestiges. Another question from NCERT is, what is the maximum concentration of equimolar solution of ferrous sulfate and sodium sulfate required so that mixed on when mixed no precipitation है. क्या हम maximum concentration कब हो सकती है कि precipitate में बने जब आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर होते हैं उस केस. तो इसमें तो हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन मुझे इनकी बतानी है. तो मैंने मान लिया कि दोनों की कंसंट्रेशन XM है, दोनों BB वॉल्यूम मिक्स कर दिए. then M1 B1 is equal to M2 B2. इसकी कंसंट्रेशन X, B on mixing to B. अब मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या होगी? X/2. तो इन मिक्सचर फेरस सल्फेट की कंसंट्रेशन, एक फेरस सल्फेट कितना आयरन देता है? एक सोडियम सल्फेट सल्फाइड कितना सल्फाइड एक ही देता है, क्योंकि हम किसका देखना? फेरस सल्फाइड में फेरस एंड सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन एंड दिस कम्स आउट टू X/2, दोनों का X/2. सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में क्या होना चाहिए? आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट व्हिच इज इक्वल टू Fe2 पॉजिटिव इनटू S2 नेगेटिव. जिसकी वैल्यू दे रखी है X/2 X2 करके. तो ये कितना आ गया? 25.0 10 minus 18. इसका स्क्वायर रूट गेस कर सकते हैं. इसका स्क्वायर रूट 10 minus 9. 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 5.02 इज वेरी नेग्लिजिबल. 0.02 0.03 ऐसे वैल्यू बहुत ही कम आएगी आपको डिजिट में. तो दिस इज द कंसंट्रेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड. मैक्सिमम कंसंट्रेशन ताकि कोई भी प्रेसिपिटेट ना बने. तो इन न्यूमेरिकल्स को बाकी भी सॉल्युबिलिटी आयनिक प्रोडक्ट